Ji, welcome everyone. So today I am again bringing up one of the latest judgments of the Supreme Court. And yes, the subject would be the law called as the Maintenance and Welfare of the Parents and Senior Citizens Act. So this is one of the landmark judgments which has been recently pronounced. And when I say a landmark judgment, this is landmark because a principle of law has been laid down, right? सो आप सबका स्वागत है। आज मैं एक नई जजमेंट लेके आया हूं आपके सामने, और वो लेटेस्ट जजमेंट तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसको एक लैंडमार्क जजमेंट भी बोलूंगा। और वो जजमेंट जो है वो है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड द सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007 पर। वो जजमेंट जो है मैं अभी आपसे शेयर करूंगा, और जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल भी है। मैं आपसे जजमेंट भी शेयर करूंगा और मेरे थॉट्स भी और लॉ भी, that what the law has been laid down. So what I'm saying is that yes, I am again bringing you a landmark or a latest judgment, which I would say that yes, it has brought a different interpretation. Obviously there is a point of law that has been discussed here, that somewhat goes against this judgment, but let's see how it goes, what the facts are, and let me have this judgment with you now. ठीक है, चलिए तो बेटा let's get started today. So today the judgment which I am sharing with you would be this judgment called as the Urmila Dikshit versus Sunil Sharan Dikshit. I hope you are able to see this. Urmila Dikshit versus Sunil Sharan Dikshit. Now in this judgment, as I already told you, that this judgment is basically a 2025 judgment, and I hope you remember this citation, the concept of neutral citation which I had given you in one of my videos. तो अगर आप देखें बेटा, यहाँ पर एक 2025 INC और 20 करके एक citation है जो कि एक न्यूट्रल साइटेशन कंसेप्ट है, जो शायद मैंने आपको पहले एक वीडियो में दिया था। INC से बनेगा द इंडियन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। तो चलिए लेट्स सी हाउ इट गोस, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जजमेंट के बारे में, तो ये जजमेंट कहीं ना कहीं हमें ये चीज तो बताती है ही दैट व्हाट द पॉइंट ऑफ लॉ इज, लेकिन हमें ये चीज भी देखनी है दैट कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट अपॉन दिस। और टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इस बात से शुरू करना चाहूंगा कि लीगल पॉइंट तो हम कर ही लेंगे, बट कहीं ना कहीं ये एक ऐसी जजमेंट है जो हमें दिखाती है दैट वेयर आर सोसाइटी हैज गॉन, हमारा समाज कहां तक पहुंच चुका है। एंड फॉरगेट अबाउट the neighbors, forget about the relatives, in the sense how can be a person so much, if I'm not if I'm able to put it correctly, if I'm not using the wrong words, I think cruelty would be the thing, right? तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं कहूंगा कि जो मैंने देखा समाज में, वो जजमेंट में देख के मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे पर्सनल व्यूज हैं। जरूरी यहाँ पे इत्तेफाक रखें, इट इज नॉट दैट कि यू शुड अग्री टू व्हाट माय व्यूज आर, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट आई हैव यूज्ड द वर्ड क्रूअल अगेन। आई एम reiterating that how can be person so cruel to his or her own parents, right? So what I'm saying is, look at where the society has come, but we have to live with it, right? So this is my version, my view. Again, I am telling you that you are not bound by it, you can have your own choices, but look at where we have reached. So let's get started better. Now what I'm saying is that this judgment is a judgment that basically is called as Urmila Dikshit versus Sunil Sharan Dikshit. As the name would say that yes, beta they are the mother and the son, right? Now what had happened is, beta, if you come directly to this judgment, actually it revolves around one section that is called as section 23 of the Maintenance and Welfare of the Parents and Senior Citizens Act 2007. तो बेटा अगर आप देखें, ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट जो रिवॉल्व करती है, घूमती है, वो सेक्शन 23 पर घूमती है, 23 ऑफ द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सिटीजंस एक्ट। लेकिन अगर आप गौर करें, इसमें एक और चीज लिखी हुई है, सीकिंग सेटिंग असाइड ऑफ गिफ्ट डीड 9/9/2019। तो कहीं ना कहीं दिस इज ऑन 23, बट बिफोर आई टेक यू टू द फैक्ट्स, बिफोर आई टेक यू व्हाट द लॉ इज, आई वुड लाइक टू ब्रिंग आउट दिस सम फैक्ट्स इन माय ओन वर्जन। तो बेटा आगे बढ़ने से पहले कहीं ना कहीं मैं आपको खुद बताना चाहूंगा कि ये जजमेंट किस बेस पर है और क्या है। Actually, there is a section called as 23, right? There is a section called as 23 of this Maintenance of Parents and Senior Citizens Act. So what this 23 is all about? ये 23 किस बारे में है बेटा? That there are 2 points here, right? As far as the 23 is concerned, there are 2 points. No doubt, I'll be bringing you to those 2 points when I will be coming to the judgment. In fact,
the bare act version, the sections have been inculcated in this judgment. So I'll be taking you to that judgment where you can find out the section. तो कहीं ना कहीं मैं आपको सेक्शन भी पढ़वाऊंगा और वो सेक्शंस हमें बेरेट में जाने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो जजमेंट में दिए गए हैं, तो मैं आपको जजमेंट में पढ़ा दूंगा और फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे. कमिंग बैक टू द जजमेंट, I would say to you before I come to the judgment, beta, let me have one story as far as this 23 is concerned. What this 23 is all about? This section 23 of this act is all about it that yes, if there is a senior citizen, right? This section 23 is all about that. Let's suppose there is a senior citizen, and this senior citizen has transferred the property to the son or the daughter, right? So here, no doubt, the word transfer has different ramifications and meaning, but let's come back in a shorter version. I would say here, assume that transfer is only a gift, right? So in a shorter version, I would like to tell you that this 23 talks about that yes, if there is a senior citizen and this senior citizen has transferred the property to his sons or daughters, then if there is also a promise that yes, indeed, the father and the mother, the papa and the mummy, you transfer us the property and we do undertake to take care of you throughout your life, then if after the transfer they are not able to take care of the parents, they are not willfully taking care of the parents, then yes, the gift, the transfer which has been made would be considered to be void. This is what 23 is all about. कहीं ना कहीं बेटा 23 कहता है, 20 देखो दो चीजों पे फोकस करता है. सेक्शन 23 जो एक्ट है, ये मेंटेनेंस ऑफ एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एंड पेरेंट्स एक्ट का, बेटा ये दो चीजों पे फोकस करता है. नो डाउट मैं आपको भी लेके जाऊंगा, पहले अपने वर्ड्स में समझाना चाहता हूं मैं. तो बेटा इस सेक्शन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है. वो दो चीजें ये है कि अगर किसी माता पिता ने अपने बच्चों को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, और ट्रांसफर का वैसे तो बहुत अलग मतलब भी होते हैं, लेकिन आज अभी आप गिफ्ट को मान के चलें, तो अगर किसी माता पिता ने, अपनी पेरेंट्स ने कोई प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे दी है और साथ में बच्चों ने ये वादा किया कि हम आपको जिंदगी भर आपका भरण पोषण या आपकी देखभाल करेंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो जो ट्रांसफर, वो जो गिफ्ट है उसको वॉइड माना जाएगा. तो कहीं ना कहीं ये है कि एक तो ये है कि एक एक्ट हो गया और उसका आफ्टर इफेक्ट, राइट? तो बेसिकली व्हाट वी आर लुकिंग एट कि एक कृत्य है और उसके बाद क्या होता है वो देखने वाली बात है इसमें. तो ये 23 है. एक बार शायद मेरे शब्दों से आपको समझ ना आया हो तो एक बार मैं आपको पढ़ा भी देता हूं कि ये है क्या. तो देखिए बेटा, यहां पर अगर हम देखें तो ये इसके फैक्ट्स दिए गए हैं. कहीं ना कहीं मैंने आपको फैक्ट्स बता दिया कि वो फैक्ट्स क्या थे कि एक पेरेंट्स ने अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को गिफ्ट कर दी और उसके बाद में शायद उन्होंने उनको ढंग से रखना बंद कर दिया, तो उसके बाद में वो पेरेंट्स कहते हैं कि भैया इसको वॉइड डिक्लेयर किया जाए. सो व्हाट आई एम सेइंग इज द बेसिक फैक्ट्स आर दैट some of the parents transfer the property, here the mother transfer the property to the children, and thereafter the children refuse to take care of that. तो now ये बहुत सारे जजमेंट्स हैं इसमें जो कि कहती है कि हमें एक बेनिफिशियल पर्पस लेना चाहिए. तो एक्चुअली यहाँ पे जितनी भी जजमेंट्स है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कहा गया है कि बेटा बेनिफिशियल पर्पस अगर कोई एक्ट का है तो हम उसे लिबरल इंटरप्रिटेशन करना चाहिए. एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको सीधा सेक्शन 23 पे लेके आना चाहता हूँ जो उस एक्ट में लिखा हुआ है. ये देखिए बेटा, अब ये वो सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो अब देखिए सेक्शन 23 क्या है. ठीक है, इसको पढ़ते हैं. क्या शायद मैंने आपको वही जो बात कही है वो यहाँ पे है या नहीं है वो देखते हैं. तो 23 क्या कहता है? द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस. तो वो कहना चाहते हैं कि कभी कभार कुछ सर्कमस्टांसेस में जो प्रॉपर्टी होगी उसको हम वॉइड डिक्लेयर कर देंगे. उसको हम वॉइड डिक्लेयर कर देंगे. वॉइड का मतलब है it is nothing in the eyes of law. थोड़ा सा मैं इसको ब्रॉड कर देता हूं. Nothing in the eyes of law. So now look bit on a simplistic basis what the law says. आप ध्यान से चलते हैं और देखते हैं ये लॉ में क्या कहना चाहता है. तो ये लॉ कहता है कि where any senior citizen, जहां पे किसी सीनियर सिटीजन ने after the commencement of this act, इस एक्ट के आने के बाद में has transferred by way of a gift or otherwise, तो मैंने आपको बोला गिफ्ट मान लीजिए, वैसे तो यहाँ पे एक वर्ड अदरवाइज भी है तो उसके बारे में कभी बाद में डिस्कस करेंगे. हिज प्रॉपर्टी, अब ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द ट्रांसफरी, बेटा यहाँ पे एक वर्ड ट्रांसफरी है. ट्रांसफरी का मतलब वो है कि जिसको प्रॉपर्टी दी गई जो कि आपके बच्चे हो सकते हैं. ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी दो लोग होते हैं, उनके बारे में बात की गई है. एंड वो कहना चाहते हैं कि हमने इस शर्त पर दी that the transferee shall provide basic amenities. तो जो ट्रांसफरी है जिसको प्रॉपर्टी दी गई वो हमें बेसिक अम्यूनिटीज प्रोवाइड करेंगे और हमारी बेसिक फिजिकल नीड्स का ध्यान रखेंगे. यस, दे वुड बी टेकिंग केयर ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, राइट? बट
इफ सच ट्रांसफर, लेकिन जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है, refuses or fails to provide such amenities or physical needs, the said transfer of property। अब इधर देखिए यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यूज किया गया है, और मैं बोलूंगा बेटा यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बहुत सारी होती हैं, ट्रांसफर अलग तरीके के होते हैं, बट आप यहाँ पे उसको गिफ्ट भी मान सकते हो। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, एज आई वाज टेलिंग यू दैट दो द वर्ड्स आर ट्रांसफर प्रॉपर्टी, यू मे कंक्लूड दैट यस हियर इट इज अ गिफ्ट। Then what they are saying that this transfer of property shall be deemed to have been made by fraud or coercion or undue influence, and shall at the option of the transferor, that means the parents, would be declared void by the tribunal। बेटा ट्राइब्यूनल वो है जो इस एक्ट में अलग से एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वो कहना चाहते हैं इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन, इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड बाय फ्रॉड। तो यहाँ पे बेटा एक डीम्ड कंसेप्ट है, दैट मींस वी वुड बी अज्यूमिंग दैट यस इट हैज बीन अंडर फ्रॉड एंड कोवर्जन। तो now what the law comes out, in fact what the law comes out, right? तो जो सेक्शन 23 का लॉ है कि what this law comes out, वो क्या लॉ निकल के आता है? तो मेरे हिसाब से लॉ ये निकल के आता है कि अगर किसी सीनियर सिटीजन ने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है और इस शर्त के साथ की है कि आप आगे आने वाली जिंदगी में मेरा ख्याल रखेंगे, और कल को अगर आप रिफ्यूज करते हैं तो वो माना जाएगा जैसे वो जो मैंने ट्रांसफर किया था वो वॉइड है, और वॉइड क्यों है कि वो फ्रॉड है या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस है, और इसलिए उसको वॉइड डिक्लेयर करके वो वापस हो जाएगा। वॉइड हो जाएगा तो उसका मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज द बेसिक थिंग दैट वेयर a senior citizen after the act has transferred the property, and yes, with this promise that the transferee, the person to whom the property and transfer, would be taking care, and if they refuse to take care then obviously it would be removed। तो बेटा ये लॉ है। नाउ इस केस में क्या हुआ ना, व्हाट हैपेंड इन दिस केस में ये हुआ कि एक मदर ने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे दी, और फिर उन्होंने प्रॉपर्टी मिलने के बाद में उनको मैं ये नहीं बोलूंगा पालने से, लेकिन हाँ उनके भरण पोषण से इनकार कर दिया। सो व्हाट आई एम सेइंग इज इन दिस अ मदर transfers the property to the son by way of gift, and then the son refuses to take care of her। Apart from this, what the allegations are that there was also one more document that was called as the Vachan Patra, something like that, where he also undertook that yes I'll be taking care of that। तो बेटा गिफ्ट डीड के अलावा यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट था जिसको शायद उन्होंने वचन पत्र का नाम दिया, कि उन्होंने अपने वचन दिया था कि हम अपनी माँ बाप का, हम अपनी मदर का इस केस में भरण पोषण करेंगे, उनकी मदद करेंगे जब तक उनकी सांसें हैं। तो आपने नहीं किया। अब यहाँ पे वो बेटा कहता है कि मैंने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा है और समथिंग लाइक दैट। तो आप देखिएगा कि वो किस हद तक जाते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज इन दिस सन pleaded that no, I have not written any of such letters। Now the thing is, irrespective of whether the letter has been laid or not, let's come to the gift deed। Now see beta, before I move forward, I must tell you that there is also a judgment, that is also a two judge bench judgment like this Urmila judgment, which was pronounced by the Supreme Court in the year 2022 if I'm not wrong। मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ, and that has a different इंटरप्रिटेशन एज सच। उन्होंने वो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दी थी, और मैं आपको दिखाता हूँ बेटा वो जजमेंट कौन सी, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, अगर हम इस जजमेंट में आगे बढ़े तो अगर आप देखें बेटा, तो ये जो जजमेंट है उसके बाद एक और जजमेंट, उससे पहले सॉरी एक और जजमेंट आई, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि ये जो जजमेंट थी, ये जजमेंट 2022 की, तो अगर आप देखें ये 2022 की जजमेंट है। तो 2022 में ऑलरेडी एक जजमेंट आ चुकी थी जिसका नाम था सुदेश चिकारा वर्सेस रमती देवी। Here also the facts were that it was the mother who had transferred the property to the sons, and thereafter they refused to obey the things, और उन्होंने मदर को टेक केयर करना बंद कर दिया। तो बेटा यहाँ पर क्या था, दिस कोर्ट रिफ्यूज टू ग्रांट द बेनिफिट। यहाँ पर क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने 23 का बेनिफिट वहां पर नहीं दिया था, ठीक है। और वहां पर 23 का बेनिफिट इसलिए नहीं दिया बिकॉज कहीं ना कहीं वो इस बात पे थे कि अगर आप देखें कि तो इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्हेन सीनियर सिटीजन पार्ट्स का मतलब दैट यू आर गिविंग योर राइट्स, यू आर मेकिंग सर्टेन डिविजन और ट्रांसफर्स। तो पार्टिंग का मतलब ये होता है बेटा। सो व्हेन अ सीनियर सिटीजन पार्ट्स विद हिज और हर प्रॉपर्टी बाय एग्जीक्यूटिंग अ गिफ्ट और रिलीज डीड, dear ones, and so generally what happens is a condition of looking after
the senior citizen is not necessarily attached to it. तो what they say कि generally जब कोई भी सीनियर सिटीजन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो वो देखेंगे आपकी वो कंडीशंस अटैच नहीं करता, और सुप्रीम कोर्ट का मानना यह था कि वेरी ऑफन सच ट्रांसफर्स आर मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न। तो वो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के चले जाते हैं, और क्योंकि एक कुछ सेक्शन 23 इंपॉर्टेंट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुदेश वाले केस में कहा दैट सबसे पहली बात है कि ट्रांसफर जो होना चाहिए मस्ट हैव बीन मेड टू सबमिट टू अ कंडीशन। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था सुदेश वाले केस में कि जो ट्रांसफर हुआ होना चाहिए, जो ट्रांसफर हुआ होना चाहिए वो सब्जेक्ट टू इस कंडीशन होना चाहिए, वो सब्जेक्ट टू इस कंडीशन होना चाहिए कि आप हमें प्रोवाइड करेंगे, और फिर इफ यू आर नॉट एबल टू गिव अस देन इट वुड लाई। तो व्हाट आई एम सेइंग टू हियर इज बेटा दैट मैं अगर सिंपल भाषा में फिर से बोलना चाहूं तो in this judgment Urmila, before this judgment Urmila, there was already one judgment that is called as Sudesh, Sudesh Shikara, what we just read. Now, very simplistically, what the judgment told us, the previous judgment I'm talking about, the previous judgment told us that generally, when we look at the transfers which do take place every day, generally these transfers are made out of love and affection, and they are not having such conditions that the children or to whomsoever the property has been given would take care. And yes, no doubt this thing can be declared to be void, but according to Supreme Court in that judgment, Sudesh Shikara, there has to be those two conditions inculcated in the document, right? So what they are saying is that no doubt the law as far as 23 which talks about voidness of the gift is concerned, it is there. But according to the Supreme Court, their view was that such voidness can be declared, such voidness would be there only and only if the strict interpretation of section 23 is there. And what it meant by strict interpretation is that yes, there has to be that conditions inculcated wherein the transferee or the child or the children, whatever they are, whomsoever they are, they undertake to say that yes, we would be taking care of that. And Supreme Court said that yes, if such undertaking is not there, which generally is not there because it is made out of love and affection, then 23 to a larger extent would not be attracted, and hence it would be deemed to be valid and not declared to be void. तो बेटा मेरे कहने का मतलब है, सरल शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूं, या मैं क्या कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में ये लिखा था। तो उर्मिला वाली जजमेंट से पहले अगर हम सुदेश चिकारा वाली जजमेंट में आए, जो कि 2022 की जजमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंट इंटरप्रिटेशन की गई थी। उसके हिसाब से ये कहा गया था कि बिल्कुल सही बात है कि सेक्शन 23 में कोई भी गिफ्ट या ट्रांसफर वॉइड होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा ट्रांसफर हम तब वॉइड मानेंगे अगर ऐसी टर्म एंड कंडीशन लिखी गई हो। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें 23 को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। इसका मतलब ये कि हमें उस डॉक्यूमेंट को देखना पड़ेगा, क्या उस डॉक्यूमेंट में उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट या ट्रांसफर करते हुए क्या ये लिखा गया था कि उस पुत्र द्वारा, पुत्री द्वारा, कि उन बच्चों द्वारा कि हम आपका भरण पोषण करेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। तो अगर ऐसा लिखा गया है और वो फिर नहीं करते तो आपको बेनिफिट बनता है। लेकिन उन्होंने बोला कि आमतौर पर ज्यादातर जब भी ये चीजें देखी गई हैं तो उसमें देखा गया कि ऐसी कंडीशंस लिखी नहीं जाती हैं, ऐसी कंडीशन लिखी नहीं जाती। तो क्योंकि ऐसी कंडीशन लिखी नहीं गई तो लिहाजा हम आपको सेक्शन 23 का बेनिफिट नहीं दे सकते। और वही क्वेश्चन दोबारा इस जजमेंट, उर्मिला वाले जजमेंट में दोबारा आया, और मेरा मानना है कि इस बार राइटली सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही डिसीजन दिया और बोला कि ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा भरण पोषण नहीं हुआ तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक बात पे आगे चली कि हमें स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन एज सच नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि जब एक एक्ट बनता है जो कोई बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है तो उसको हमें ऐसे इंटरप्रेट करना चाहिए, ऐसे लिबरल इंटरप्रिटेशन देना चाहिए जिससे जिस उद्देश्य से वो लॉ बना है वो पूरा हो जाए। तो इसीलिए अगर हम ये इंटरप्रिटेशन देते हैं आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो कंडीशन नहीं है, तो शायद इस लॉ का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, और ऐसा कभी हमारी पार्लियामेंट ने सोचा नहीं होगा। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो बच्चे सेवा नहीं करते हैं तो उसको वॉइड माना जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से एक वंडरफुल चीज थी, वंडरफुल डिसीजन। ऑब्वियसली हूं एम आई, मैं तो कुछ भी नहीं, तो लेकिन फिर भी शायद एक ओपिनियन रखने का मेरा हक है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट बेटा व्हाट हैपेंड वाज द स्टोरी दैट आई वाज टेलिंग यू वाज दैट देयर वाज अ जजमेंट कॉल्ड एज Sudesh Shikara wherein the Supreme Court had a strict, I would say, interpretation in the sense of
verbatim what was written has to be followed, which meant that if we look at the terms and conditions of the gift, there must be those two conditions that have to be followed. The conditions are that yes, there must be a promise that I would be taking care of the parents, and yes, there is a failure on the part of the person or the transferee. And if there is no condition, and there is obviously then there will be no failure, there will be no benefit of 23. So to a larger extent, I must tell you that there was a strict interpretation, right? And Supreme Court observed in that previous case that generally we don't find these conditions, right? So, but I would say that yes, but this decision was not followed in this judgment called Urmila, and in this case, the Supreme Court said that since it is a beneficial legislation, interpretation should be given in such a manner that basically boasts or helps out the object or mischief of the act. And the mischief of the act is to bring out the relief to the senior citizens and the parents. So where I think Supreme Court said in that case that okay, if there is a gift, despite the fact that we have not inculcated those conditions, still we have to give such an interpretation that brings out the relief to this. And according to me, that was a wonderful judgment, right? See, understand one thing. See, when I say I have the right of having an opinion, I would say to you that better understand one thing, that especially when you talk about a layman, no, who is bereft of any legal knowledge as such, or when you talk about senior citizens, no, I think they are at such a age where you cannot expect the deep integrities, the nitty-gritties of the law, the deep points of law, right? So I would say that reasonable expectation is there, but what can you reasonably expect from a parent, no, when he is dealing with his child, no? He cannot expect that yes, obviously the child would be like this, right? So what I mean to say is that yes, indeed, if that condition is conspicuously absent, the condition is not there, right? I would say that there has to be a thing that is called as mens rea. I would bring in here a thought process basically. So what I'm saying is that no doubt when a parent is transferring or a senior citizen transferring their property with this intention, with this belief that I am doing it out of love and affection, no doubt it is love and affection, but I think this is done in that anticipation that if I am, doing my thing, if I am transferring the property because ultimately it would belong to my children, I think they are expecting the reciprocal promise, which is obviously unwritten, but it is there in a society. So they are also expecting a reasonable, reciprocal thing from the children, which I think is very much a legitimate expectation. Right? तो मेरे कहने का मतलब बेटा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में मैं ये कहना चाहूंगा सुदेश वाली में कि ठीक है, एक टेक्निकल लॉ है, एक स्ट्रिक्ट लॉ है, हमें मानना चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि हाँ, आप खुद सोचिए कि आप जो एक लेमैन है या जो बुजुर्ग आदमी है, जनाब, आप मुझसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इनको सारे लॉ के छोटे छोटे चीजें पता होंगी और सारे के सारे उनके पॉइंट्स पता होंगे. कहीं ना कहीं हम रीजनेबली एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जैसे बिहेव करते हैं वैसे करेंगे. तो कोई कैसे बिहेव करे, कि माँ बाप कैसे बिहेव करेगा अपने बच्चे से, शायद वो उम्मीद रखेगा कि जैसे मैंने अपना दायित्व निभाया है, मैंने अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दी है, तो मैं सोचता हूँ कि वो रेसिप्रोकल वैसे ही वो उल्टा मुझे देगा. तो शायद आई थिंक हमारे समाज में एक अनरिटन रूल होता है, और ये एक एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर माँ बाप एक बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं तो शायद बच्चा से भी एक्सपेक्ट की जाती है, बच्चों से एक्सपेक्ट की जाती है कि शायद वो भी हमारी सेवा करेंगे. तो मेरे को लगता है कि जरूरी नहीं है हर चीज लिखी जाए. तो अगर हम आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, तो मेरे कहने का मतलब है कि शायद लव एंड अफेक्शन भी बोथ वेज होना चाहिए, और अगर वो बोथ वेज नहीं है तो हमें पेरेंट्स को भी ये एक मौका देना चाहिए कि वो भी अपना लव एंड अफेक्शन विड्रॉ कर लें. तो नो डाउट ये मेरा व्यू था. जरूर नहीं यहाँ पे से बात हूँ, ऑब्वियसली आई एम अ वेरी स्मॉल पर्सन, माय व्यूज आर वेरी पर्सनल टू, आई डोंट वांट यू टू बी फॉलो, बट डोंट वांट यू टू फॉलो दैट, बट आई वुड से टू दैट यस, द लेटेस्ट जजमेंट कॉल्ड एज Urmila judgment is what the judgment is all about, where the gift, because it was not done with the promise that we would be helping you out or taking care of, was declared to be void. अगर आप देखें, I'll be taking you to that judgment again, and the result was that here, no doubt, there was, things which basically the opposite party said that yes, we have to follow the judgment called as Sudesh judgment, which I talked about. But no doubt the Supreme Court said that we should not use such an interpretation that would defeat the purpose and the object of the act, which is to provide speedy, simple and inexpensive remedy for the act. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं देनी चाहिए कि जिससे ये एक्ट डिफीट हो जाए और
इनका कहने का मतलब है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारे कंसिडर्ड व्यू के हिसाब से, इन आवर कंसिडर्ड व्यू, द रिलीफ अवेलेबल टू सीनियर सिटीजन्स under 23 is interestingly linked with the statement and object and the reasons of the act. उन्होंने बोला कि हमें ऑब्जेक्ट और इसके मिसचीफ भी देखना चाहिए, और दैट इज कि एडरली सिटीजन जो हमारे देश के हैं ऑफ आवर कंट्री are if not looked after or not being looked after. So what the Supreme Court said, that indeed we should not forget that in India our elderly citizens are not looked after. So it is directly in furtherance of the objectives of the act. तो कहीं ना कहीं ये इस लॉ के उद्देश्य को आगे लेके जाना है, और we have to know it is directly in furtherance of the objectives of the act. Here it is very important line that it is basically for the objectives of the act, and we must empower. So according to Supreme Court, we must empower senior citizens to secure their rights promptly when they transfer property, subject to the conditions of being maintained by the transfer. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें उद्देश्य को देखना चाहिए, और अगर हम ऐसी इंटरप्रिटेशन देंगे जो उद्देश्य के खिलाफ है, तो शायद ये एक्ट कहीं ना कहीं डिफीट हो जाएगा। और बेटा इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने गिफ्ट डीड जो थी, कॉन्सिक्वेंटली द गिफ्ट डीड डेटेड सो एंड सो वाज क्वैश, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया और कहा कि फटाफट से पोजेशन दे देनी चाहिए, और उन्होंने बोला कि फटाफट से आप पोजेशन दे दो। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा आपसे कि कहीं ना कहीं ये जो जजमेंट है वो हमें ये दिखाती है कि जब कोई बेनिफिशियल लेजिस्लेशन होता है जो समाज में कुछ वर्गों के लिए हमें उनकी बचाव के लिए, उनके 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 राइट्स को सिक्योर करने के लिए जब हम एक लॉ लेके आते हैं, तो उसको ऐसे ही इंटरप्रेट करना चाहिए कि उनके उनके राइट्स का बचाव हो सके। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दिस जजमेंट शोज दैट व्हेनेवर अ लॉ इज बीइंग ब्रॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ I would say a vulnerable class like senior citizens or the children or the women, we should interpret the law in such a manner that ultimately we are able to fulfill the obligations what we have, and we are able to achieve the object or the mischief of the act. So according to me, it is a wonderful judgment. Please do this, and I think it is sufficient now. If you follow this video, it would be understood by you. ठीक है, तो I stop it here. Thank you so much. Best of luck. Bye.